आज़ाद रहिए विचारों से लेकिन बंधे रहिए संस्कारों से। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रचना एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यह सिर्फ एक एज ग्रुप की बात नहीं है, ये हम सब की बात है। जब हमें फ्रीडम पसंद है तो क्या हमारे बच्चों को नहीं होगी, हमारी फैमिली को नहीं होगी? ऑब्वियसली सबको होती है, ये सबका राइट भी है। सो गाइज, अब क्वेश्चन आता है कि हम क्यों किसी के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको लग रहा है कि हम किसी को अंडर प्रेशर कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को डिस्कस करके सॉल्व कर सकते हैं, ताकि बात मानने वाले को भी ये ना लगे कि मेरी फ्रीडम को कंट्रोल किया जा रहा है, और बात मनवाने वाले को भी ये ना लगे, राइट। सो गाइज, आज का वीडियो कुछ इसी टॉपिक पर होने वाला है, क्योंकि हमारे पास वेरियस काइंड ऑफ वीडियोस हैं, वेरियस एज ग्रुप के वीडियोस हैं, जिनको देखकर आप जज कर पाएंगे कि किस टाइप की एज ग्रुप को किस टाइप की फ्रीडम की रिक्वायरमेंट होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियोस एंड आफ्टर दैट विल कंक्लूड इट। Okay, so one of my friend asked me a question the other night, that what is freedom for you? What is freedom for me? So I'm gonna answer this for you, Rachna. What is freedom for me based on my experience in my life till date? Okay, freedom to me, uh, freedom to me means deciding who you are now, who you want to be in future. It means to have a control on your choice. It is taking control of your destiny. Okay, for me, freedom is being able to choose my path in life, be it career, be it business, or be it relationships, and not being told or judged by someone, and not being told that okay, you're doing wrong or impossible thing. So it means being the boss of your own life. That this is freedom for me, for which I consider myself very lucky that I'm the boss of my life, that my parents have given me the freedom to take path of my life, to choose my own path in my life, uh, and to decide my path for future and my present. Hey guys, I'm Ayushi and I'm 17. According to me, freedom or independence is the ability to take decisions on my own for my sake and others also. But due to peer pressure, social media influence, some of us are taking foolish risks and breaking the rules. As a survey, a question is asked to the teenagers that you want to do something and your parents disapprove it. What will you do? 6% answered that I am just doing what my parents want me to do. 89% of them answered that I am just pursuing my freedom and my ability to do what I want to do. Some of them answered I am just being rebellious against my parents. 9 out of 10 answered that they do something which is rebellion against parents. Kids high on the thrill of freedom may not be thinking clearly. We believe that nothing bad will happen if we drive too fast, get drunk, and go swimming in the lake, do adventure thing without in the knowledge of our parents. Ironically, too much freedom can be scary, and then kids want to involve their parents. At the end, we much prefer to talk to our parents about the choices and challenges we face. If you had freedom, if you are willing, if you are free to do anything you want, then use your freedom in a positive way. जब हम अपने मन से खुद काम करेंगे ना, तभी फ्रीडम मिलती है, किसी और के तो बताने से नहीं मिलती है। आई रिमेंबर इट वॉज माई 6th क्लास और मेरे को बिल्कुल भी पढ़ने का, कुछ भी करने का मन ही नहीं करता था, कुछ भी नहीं। मतलब पढ़ना वॉज लाइक कि मेरे लिए वोल्केनो के अंदर बैठ के उसमें से लावा निकलना, इतनी मतलब मेरे को उससे वो होता था कि क्या है ये। बहुत बहुत मुश्किल से पढ़ता था, कैसे भी करिए। एंड आई रिमेंबर उस साल मैंने बहुत मेहनत करी थी, बट स्टिल आई डिड नॉट स्कोर फर्स्ट। मेरा वो गोल था फर्स्ट आने का, पर नहीं हो पाया। और उसके बाद
जैसी वो मेरे को आज भी याद है, जब मैंने मैम के लास्ट एग्ज़ाम की शीट मैम को दे दी, उसके बाद क्या हुआ, जब मैं घर गया और मैंने कहा अब मैं याद है, मैं अपनी बालकनी में खड़ा था और मैंने आसमान को देख के कहा अब तो मैं फ्री हो गया, क्योंकि अब मुझे पता है कोई मेरे को कुछ नहीं बोला है, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम ख़त्म, स्कूल भी ख़त्म, 15 दिन के लिए फ्री। एंड आई रिमेंबर एट दैट टाइम माई क्रिएटिविटी लेवल वॉज जितना कभी आज तक नहीं हुआ है। मान लो अगर उस टाइम में 10% था, तो जब फ्री हो गया मैं, उसके बाद मैं 120% पे पहुंच गया था। इतना क्रिएटिव, इतना मन कर रहा है मेरा पढ़ने का, क्या बताऊँ मैं। कभी मन कर रहा है ये देख लूँ, कभी ये कर लूँ, कभी ये कर लूँ, कुछ भी गलत करने का मन नहीं कर रहा था। अब ऑल लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जितने भी हमारे ज़िंदगी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो सब इसीलिए हैं कि हम लोग दूसरे लोगों के द्वारा कंट्रोल हो जा रहे हैं। कोई कभी कह रहा है ये करो, कोई कह रहा है ये करो। अरे भाई अपनी सुनो ना यार, कब तक दूसरों की सुनोगे। फिर जब एंड टाइम आएगा ना लाइफ में, जब मरने का टाइम आएगा, तो एक आपको एक कहानी बताता हूँ मैं। एक आदमी था, वो आज उसकी एज 10 साल है। उसके माता पिता ने भर दिया उसके दिमाग में, ये करना ये करना ये करना, IIT करना, पहले ये करना वो करना, ठीक है। उसका ड्रीम था कि मेरे को या तो पायलट बनना है या फिर एथलीट बनना है, ठीक है, या तो पायलट या एथलीट। वैसे ज़्यादा शौक उसको एथलीट बनने का था, रनिंग। उसका गोल था कि मुझे उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ना है। अब देखो, अब बार उसके जिंदगी के दिन चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, वो रनिंग में सबसे आगे अपनी क्लास में। वो अपने स्कूल में टूर्नामेंट्स भी जीत गया, रनिंग के फर्स्ट आया। इतने तेज भागता है, क्या बताऊं। जब वो भागता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या भाग के जा रहा है, इतनी फास्ट, ठीक है। अब उसने जो भी, जिसने वो लोगों ने बोला करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है, कर दिया। फिर उसके दोस्तों ने बोला चल अब नौकरी कर ले। पहले सबने बोला कि बस कुछ साल मेहनत कर रही है, 12th तक मेहनत करनी है, सब कुछ इतना ही। 12th के बाद बोला कॉलेज में मेहनत कर लो। कॉलेज में बोला कि अपनी कंपनी में मेहनत कर लो। कंपनी के बाद बोला कि लड़की देख लो अपने लिए। Hello everyone, I'm Rohanat Lakha, and well, the word freedom has its own unique happiness in it, right? And freedom to me is not to being a prisoner of anyone or anything, because now these days I don't think so. We are prisoner of anyone, or we want freedom from anyone. No, we are prisoner of our mind, our mentality. Like we used to differentiate in genders. Some people think that boys have better life than girls, vice versa. We used to compare between religions, caste. I guess it makes us prisoner only of our mind, because our mind is the only thing that stops us from doing so many things, like so many. Because I don't think so we can change our society or anyone's mentality, but we can do on ourselves, we can work on ourselves even, because as we all know that we are living in a democratic country. Everyone has a right to speak, everyone has a right to roam anywhere, no one will going to stop you. And according to me, this is only us who can take stand of ourselves at every step of life, at every step. So only we need enough guts to make ourselves free and happy. So the freedom to me is enough courage to live a life on our desires, to get what we want. So thank you so much. Life without liberty is like body without spirits. Good morning to one and all present here. Today, our Bhavishata is here to present a speech on the topic, what is freedom according to me? First of all, what is freedom? To answer this question, I would like to say that freedom is not given, it's won. But in the real life, freedom, liberty, independence are referred to as an under restriction and an opportunity to exercise one's rights and powers. India is a country which was ruled earlier by the Britishers. To get rid of these rulers, India fought back and earned their freedom. And see, now India is a free country and the world's largest democratic country in the world. But today, in today's life, children and teenagers might thought of freedom like an license of doing whatever they want to do in their life without any restriction on them.
Teenagers might think of freedom as being able to go to college on their own, carrying and showing off their expensive phones and a license of skipping lectures. But I believe that freedom has both good and bad effects. It can make a person or either break a person. A person can be influenced by freedom, or a person can be influenced in the wrong company due to freedom. Being a girl, I think that freedom is the most important thing in my life because it helps me to live my life confidently and to face my fears, strengths, and to be myself to be strong. So I will conclude with this: by seeing the condition of a country, let us hope for the best, and everyone should get freedom in their life. Thank you. Stay strong, stay safe, and stay home. From India, if you are from India, once or maybe a multiple times you have been told in your life, you must have heard that चार लोग क्या कहेंगे. So I'm grateful to be free to take my own choices as a girl in a country like India, where people give more importance to what a group of people thinks rather than an individual. Okay, so it's just a gratefulness to be free. So basically freedom is when you give someone the right to think, when you give someone a choice, when someone's opinion matters. This is freedom for me. I hope you get my answer. Bye bye. Signing off. Hello everyone, this is me Sheetal Chaudhary. So someone asked me what does freedom means to me. So for me, freedom is जो आपको पसंद है वो करना और वो करने देना. कोई आपको रोके ना कि आपको जो पसंद है उसे ना करने दे. सेकंड, अपने पसंद के कपड़े पहनना. लड़कियों को कपड़े शॉर्ट ड्रेसेस पहनना पसंद होती है, लेकिन सोसाइटी उन्हें वो अलाउड नहीं करती क्योंकि आपको पता है गर्ल्स के साथ रेप बहुत होते हैं. सो हमें जज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ आवर क्लोथ्स. तो हमें वो ना किया जाए. दिस इज फ्रीडम टू मी. थर्ड, टू एक्सप्लोर प्लेसेस दैट वी लाइक. हमें जहाँ पसंद हो हम वहाँ जा सके बिना किसी रोक टोक के. सो दैट्स इट. थैंक यू सो मच. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई स्टडी इन बीए फर्स्ट ईयर. तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ फ्रीडम. फ्रीडम क्या है? जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि फ्रीडम ये है कि हमें यहाँ जाना चाहिए, हमें वहाँ जाना चाहिए, हमें यहाँ घूमना चाहिए. जैसे बेसिकली लड़कियाँ ये सोचती है कि हमें हर प्रकार की फ्रीडम होनी चाहिए. जैसे कि बॉयज़ इसको होती है नाइट आउट जाएँ, यहाँ जाएँ, वहाँ जाएँ, घूमें, पार्टीज़ करें. हाँ चलो ठीक है, वो भी हाँ सबको मिलनी चाहिए. बट फ्रीडम एक ये भी है कि हमें जैसे घर वालों ने हमें एक फ्रीडम दी है कि हमें पढ़ लिख कर कुछ बन जाने की. तो अगर हम अब पढ़ लिख कर अपने पैरों पर स्टैंड भी हो जाते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी फ्रीडम है हमारे लिए. फिर हमें किसी की नहीं सुननी पड़ती क्योंकि हम अपने पैरों पर फुल स्टैंड हो जाते हैं. हमें किसी की नीड नहीं होती. तो फिर हमें बहुत इस चीज़ का भी बहुत लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ता है. बट कुछ लोग ये होते हैं कि वो सोचते हैं कि अगर हमने लड़के को ज़्यादा फ्रीडम दे दी तो सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे, गली वाले क्या सोचेंगे. तो उन माँ बाप को उन सब में नहीं ध्यान देना चाहिए और जो वो सोचते हैं वही करना चाहिए. और जो एक लड़की के लिए सही होता है वही उन्हें करना चाहिए. थैंक यू सो मच. Hey guys, Hitika here. So today we're gonna talk about freedom. Yeah, it may have different meaning for different people, for the different spheres of life. But for me, freedom is just my own way to act against the world, against the challenges that I'm gonna face and still I am facing. It doesn't mean to act without asking my elders or without my parents. So be a freely man, but have a consultation with your parents, with your family, or with your well-knowns. Thank you. आज़ादी कठिन है क्या ये शब्द? नहीं ना. आज़ादी का मतलब क्या? वो जो मैं करना चाहूँ. मेरा अगर गाने का मन है तो मैं बिना ये सोचे कि कोई मुझे बेसुरा कहेगा मैं बस गा लूँ. मेरा तुमसे बातें करने का मन है तो मैं बिना ये सोचे कि तुम्हें कैसा लगेगा या तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं होगा, मैं बिना इस डर के मैं तुम्हारे साथ बातें कर सकूं. मेरा खिलखिलाने कर हंसने का मन करे तो मैं हंस लूं. बस आज़ादी में इतना ही ध्यान रखने की ज़रूरत मुझे महसूस होती है कि किसी को मेरी वजह से नुकसान ना हो. उस नुकसान को किए बिना मैं अगर खुश रहने का कोई तरीका अपने लिए ढूंढ पाऊँ, वो है मेरी आज़ादी. मैं जहाँ जाना चाहूँ, मैं जो करना चाहूँ,
मैं जैसे हंसना चाहूँ, मैं जैसे गाना चाहूँ, मैं जो पढ़ना चाहूँ, मैं जैसे कपड़े पहनना चाहूँ, मैं हर तरह से अपने मन से अपने आप को खुश रखने के लिए जो भी कर सकूँ वो है आज़ादी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है पूज कुमार एंड मेरी एज है 14 ईयर्स। मैं डायनेस्टी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ, उसका एक स्टूडेंट हूँ। और आज मैं एक टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ और वो टॉपिक है व्हाट इज़ फ्रीडम ट्रूली इन ट्रू लैंग्वेज। मैं ज़्यादा फॉर्मल नहीं रहूँगा क्योंकि लोगों को फॉर्मल लोग पसंद नहीं होते हैं, इसलिए मैं इनफॉर्मल रहूँगा एज पीपल लाइक इनफॉर्मल मोर। सो फ्रीडम, हम सब लोग सोचते आ रहे हैं इतने सालों से कि फ्रीडम वो है जैसे इंडिपेंडेंस। फॉर एग्जांपल जब हम किसी जैसे लाइक ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर किसी और गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना हो, हमारा देश, हमारा नेशन किसी और गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना हो। बट ट्रुथ तो यही है कि फ्रीडम की डेफिनेशन ये नहीं होती है। आज भी तो हम लोग फ्रीडम नहीं पाए एक तरह से, अगर आप देखोगे तो मैं प्रूफ कर दूंगा कैसे नहीं। आज भी हम लोग कोई फ्रीडम नहीं पा पाए। वी आर गेटिंग कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, वी आर गेटिंग कंट्रोल्ड बाय पेरेंट्स, वी आर गेटिंग कंट्रोल्ड बाय आवर टीचर्स, वी आर गेटिंग कंट्रोल्ड बाय फ्रेंड्स। हम सब लोग कभी फ्रेंड से, टीचर से, इससे कंट्रोल हो जा रहे हैं। एक ऐसी नदी की तरह हम लोग सब बन चुके हैं। जैसे नदी होती है ना, उसमें क्या होता है कि उसको रास्ता नहीं पता होता है, वो बस बहती जाती है, बहती जाती है, बहती जाती है, बहती जाती है। जैसे उसका रास्ता घुमाया जाता है वैसे वो बहती जाती है। वैसे ही आज हम लोगों ने अपने दिमाग को कर लिया है। जैसे हम हैं, जैसे हम चाहे वैसे हैं नहीं, पर लोग कहते हैं कभी ये कर लो, हम कहते हैं हाँ ये कर लेते हैं। कोई कहता है ये कर लो तो हम कहते हैं ये कर लेते हैं। कोई कहता है ये कर लो तो हम कहते हैं ये कर लेते हैं। पापा कहते हैं ये कर लो, ठीक है पापा कर लेते हैं। कभी भी ये नहीं पूछते। इतना साल हो गए चलते चलते, इतने साल हो गए, आज तक कभी भी पूछा है किसी ने आज तक कि यार जो मैं कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ मैं? योर ऑल लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है लाइफ रिलेटेड, वो यही है। इसी की वजह से अगर आप बहुत डीप जाएंगे तो यही है, इसी की वजह से कि वी आर नॉट डूइंग व्हाट वी लव टू डू, we are doing what other people are making us to do. एक लाइन है, if you don't have a dream then others will use you to fulfill their dreams. टाइम अभी भी है, it's never too late, it's never too late. हम लोगों को पूछ लेना चाहिए कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। और बात आई थी फ्रीडम पे, अब आप लोग सोच रहे हो कि यार फ्रीडम हमने बोला, ये तो कुछ और ही बता रहा है। देखिए सर, बात है फ्रीडम में। फिर शादी करने के बाद बोला बच्चे कर लो, बच्चे करने के बाद बोला उनको पढ़ा दो, ये कर लो, वो कर लो। आज उसकी लाइफ का आखिरी दिन है, उसकी लाइफ का आज आखिरी दिन है और अब कुछ सेकंड्स ही बचे हैं उसके मरने के। वो उस टाइम बहुत लोग दुख मना रहे होते, उसके बच्चे सब लोग कि पापा मत जाओ ऐसे वैसे। वो किसी से कुछ नहीं बोल रहा होता है और अंदर ही अंदर बोल रहा होता है यार मैंने सबकी बात मानी, सारी दुनिया, इसकी उसकी, ऐसे वैसे सबकी बात मानी, बट मैं कभी फ्री होके नहीं जिया। मैंने अपनी बात नहीं सुनी, मैं दूसरे द्वारा कंट्रोल हो गया। फिर उसने कहा कि अगले जन्म में ऐसा कभी नहीं करूंगा, और ये भी कहा कि लाइफ शुड बी बैलेंस्ड। थोड़ी सी बात मान भी लो कि मान लो, और थोड़ी सी अपनी ही मान लो। इट शुड बी बैलेंस्ड। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज इसकी बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच देखने के लिए। सो गाइज, आपने देखा किसी के लिए छोटे कपड़े पहनना फ्रीडम है, किसी के लिए एजुकेशन फ्रीडम है और किसी के लिए अपने विचारों की अभिव्यक्ति फ्रीडम है। आपके लिए फ्रीडम क्या है? प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको किस बच्चे का, किसका ओपिनियन अच्छा लगा, वो भी अप्रिशिएट कर आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिले अपने ओपिनियंस को शेयर करने का। सो गाइज़, आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।